Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss methods of preparation of alkenes from alkenes and alkynes by addition of hydrogen halides. Beta, according to this method, alkenes और alkynes are treated with hydrogen halide. इसके साथ रिएक्शन करते हैं. हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी एल्कीन्स और एल्काइन्स की. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन आई वांट टू टेल यू that beta alkenes and alkynes are divided in two types. Alkenes, beta alkenes क्या होते हैं? Unsaturated hydrocarbons having carbon-carbon double bonds. These are the alkynes, you know very well. Beta, these are divided in two types: symmetrical and unsymmetrical. Symmetrical alkenes and unsymmetrical alkenes. दो टू टाइप के होते हैं. ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा? दोज एल्कीन्स इन विच इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट टू बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के दोनों साइड सपोज ये है, दिस ये ले लिया मैंने, ब्यूट टू इन ले लेता हूं, सपोज दिस इज ब्यूट टू इन. Equal number of carbon atoms are there to both sides of the double bond, then this is called symmetrical alkene. But if there are unequal number of carbon atoms, beta, unequal number of carbon atoms are present to both sides of the double bond. One side one carbon atom, another side two carbon atom. Unequal number of carbon atoms are there to both sides of the double bond. Then this is called unsymmetrical alkene. So symmetrical, equal number of carbon atoms to both sides. Unsymmetrical, unequal number of carbon atoms are present to both sides of the double bond. Such type of alkenes are called unsymmetrical alkenes. Similarly, beta, alkynes. Similarly, alkynes unsaturated hydrocarbons having carbon-carbon triple bond. बेटा ये भी टू टाइप्स की होती हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में क्या होगा बेटा? अगेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट टू बोथ साइड ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे हम सिमिलरली. एंड अनसिमेट्रिकल में बेटा unequal number of carbon atoms are present to both sides of the triple bond. Okay, अब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो that alkyne is called symmetrical alkyne, और unequal है तो that is called unsymmetrical alkyne. Okay, simple point. Now we are going to discuss addition of hydrogen halides on alkenes and alkynes. देखिए बेटा, बड़ा इजी मेथड है. Easy method of formation of haloalkanes from alkenes and alkynes by addition of HX. ध्यान से देखना, चुटके में समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है. Now the order of reactivity of hydrogen halides you know very well. Already I have discussed in the method of preparation of haloalkanes from alcohols. And order of reactivity of hydrogen halide क्या होता है बेटा? HI most reactive, उससे लेस HBr, उससे लेस एक्टिविटी HCl, लीस्ट HF. अगर आपको ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी देखना है तो आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं. ओके, नाउ बेटा सिंपल, हम पहले कोई भी एल्कीन लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स ले लेता हूं. सपोज में दिस CH2 double bond CH2, this ethene, this is ethene बेटा. ethene when treated with suppose HCl, इसके साथ ट्रीटमेंट करवाया आपने. सिंपल बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन है, किसी एक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन चला जाएगा, किसी दूसरे पर Cl चला जाएगा, क्योंकि एडिशन होना है HCl का यहाँ पर. देन व्हाट हैपन बेटा? अगर सपोज दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, ये लोन पेयर यहाँ कलेक्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के, देन अटैक एट दिस, Cl नेगेटिव कम्स आउट, और Cl नेगेटिव फिर इस पर अटैक करेगा. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस बेटा? CH2 पर Cl आ जाएगा, देन C सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा. दिस ओके, इथाइल क्लोराइड. सिमिलरली इथाइल क्लोराइड और
क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर भाई कोई ये कहता है कि नहीं हम तो है ना कि ये वाले इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन लेकर आएंगे, तो क्या बनेगा? अगेन नो प्रॉब्लम। इफ दिस H पॉजिटिव आयन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है। अब H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होगा बेटा, ओके। एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा? फिर प्रोटोनेशन होता है यहाँ पर, इसका कार्बोनाइन बनेगा। दिस एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा? ये जो लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस कलेक्ट हियर एंड देन अटैक, इसमें अटैक कर सकते हैं। Cl2 कम्स आउट। अगेन उस केस में क्या बन जाएगा बेटा? CH3 बन जाएगा, ये इस पर हाइड्रोजन आ गया। एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आता है, इस पर Cl नेगेटिव अटैक करेगा, CH2Cl। अगेन इथाइल क्लोराइड, कंपाउंड इज सेम। मीन इफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर देयर देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एडिशन ऑफ HX। किसी एक कार्बन पर आप हाइड्रोजन ले जाओ, किसी दूसरे कार्बन पर आप X नेगेटिव लेके जाओ, ओके, सेम कंपाउंड विल फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली अच्छा, अब बट if these alkenes are unsymmetrical, then what happens beta? If these alkenes are unsymmetrical alkenes हैं, then you have to keep important point in your mind। तब आपको माइंड में important point सेट करने होंगे कि how the reaction takes place from unsymmetrical alkenes। सपोज ये ले लेता हूँ मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, prop 1 in this, prop 1 in unsymmetrical alkene है बेटा। and suppose I am going to take addition of HBr here, then what happens? What will be the product? Unsymmetrical alkene है। in case of unsymmetrical alkene बेटा, addition takes place specially according to Marconi-Cos rule। अगर Marconi-Cos rule देखना है आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं उसका, ओके। नाउ Marconi-Cos rule के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या था बेटा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वाइस वर्सा। मीन नेगेटिव कहां पर जाएगा? जिस हाइड्रोजन पर लेस नंबर ऑफ, जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। मीन देखो यहाँ पर अगर पोलैरिटी हम चेक करें, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा? पॉजिटिव पार्ट कहां पर जाएगा? उस कार्बन पर, अनसैचुरेटेड कार्बन पर जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव जहां पर कम हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए तो यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस बेटा, CH3 CH पर Br, देन सिंगल बॉन्ड CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सेकंड पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है कि ये भाई Br यहाँ पर आ जाए और H यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन एटम पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ये भी, बट वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज माइनर प्रोडक्ट, है ना। कोई ये कर दे कि CH3 CH2 Br, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज minor product and this 2 bromo propane is major product here, okay। तो ध्यान रखना बेटा, जनरली हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हमसे कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो जनरली हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं विच इज फॉर्म्ड इन लार्जर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में बनता है, लार्ज अमाउंट में बनता है, दैट इज मेजर। जो स्मॉल अमाउंट में बनता है, दैट प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट, ओके। नाउ सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्कीन, unsymmetrical alkene पर according to Marconi-Cos rule। but बेटा if the reaction takes place if this reaction takes place, suppose मैंने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, if this reaction, same reaction takes place in the presence of peroxide, benzoyl peroxide ले लेते हैं बेटा, benzoyl peroxide। peroxide जो यूज किया जाता है बेटा, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया होता है, 99% रिएक्शन में बेंजोइल पेरोक्साइड यूज होता है। अगर कहीं भी पेरोक्साइड यूज होता है तो रिएक्शंस में बेटा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो व्हाट हैपेंस बेटा? व्हिच रूल इज फॉलोड हियर? अगेन यहाँ पर एंटी मार्कोनी-कोज रूल ओबे होगा। अगर आपको इस रूल को देखना है तो ऊपर आपको पॉपअप दिखाई दे गया होगा बेटा, इसका मैकेनिज्म भी आपको मिलेगा वहां पर, ओके। देखिए, हाँ जी, तो कैसे होता है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बेटा, एंटी मार्कोनी-कोज रूल और वी कैन से खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस इज फॉलोड। इसमें क्या था बेटा
कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, positive part of attacking reagent goes to that unsaturated carbon atom which has a less number of hydrogen atoms and vice versa. मीन एंटी अपोजिट है किसके, मार्कोनिकोज रूल के, उससे बिल्कुल अपोजिट है. तो क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट हैपन, व्हाट विल फॉर्म हियर, CH3, CH पर क्या जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट इस पर जाएगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, CH2, देन CH2 एंड Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन. दिस ओके, दिस इज मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पर. प्लस सेकंड भी बन सकता है, दिस CH3, CH पर Br, CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट है यार, दिस इज माइनर प्रोडक्ट. 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट बेटा. मीन देखो प्रोडक्ट्स रिवर्स हो जाएंगे. ओके, जो मेजर है वो माइनर होगा, जो माइनर है यहाँ पर मेजर हो गया. ओके, तो एंटी मार्कोनिक कॉज रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना आपको यहाँ पर. सिमिलरली इन केस ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस में भी सेम प्रोसेस से रिएक्शन चल सकती हैं बेटा. ओके, देखिए कैसे. सपोज अब मैं यहाँ पर एल्काइन ले लेता हूँ, एक मेथड बता देता हूँ एल्काइन से भी. सपोज वी टेक दिस, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, दिस C एंड ये हो गया प्रोप 1 आयन हो गया बेटा, ठीक है, दिस वन. एक्चुअली का एडिशन करना अगेन अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिक कॉज रूल, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ए 1 बॉन्ड विल डिसोसिएट, यहाँ CH2 हो जाएगा एंड दिस विल कम. ओके, अब बेटा दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक कॉज रूल एज रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से होती है, तो सिंपल बेटा. ओके, क्या बनेगा, अगर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3 नंबरिंग लेफ्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 2 पर ब्रोमो हो जाएगा, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा. ओके, तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं बेटा. सिमिलरली अब बेटा एल्काइन से और एल्कीन से किसी से भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट से बना सकते हैं. ये हेलो एल्कीन बन जाएंगे, अगर हम एल्कीन से बनाएंगे तो हेलो एल्केन्स बन जाएंगे. ओके, बिल्कुल सिंपल मेथड है, सेम रूल्स अप्लाई करने हैं आप लोगों को बेटा. यहाँ पर ध्यान रखना है आपको यहाँ पर छोटा सा, बट एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा, कि जो एंटी मार्कोनिक कॉज रूल है दिस इज फॉलोड बाय HBr ओनली. एंटी मार्कोनिक कॉज रूल, एंटी मार्कोनिक कॉज रूल इज फॉलोड by HBr only, not by HF, HCl and HI. Why? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये रूल है जो बेटा, दिस रूल इज फॉलोड बाय HBr ओनली, सिर्फ HBr. अगर पेरोक्साइड डाल दिया है तो देखो रिएक्टेंट सेम थे वहां पर, इससे पहले वाला जो मैंने लिया था रिएक्टेंट्स यही था, प्रोपोलिन लिया था यहाँ पर भी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट 2 ब्रोमो वाला मेजर प्रोडक्ट मिला था. बट अगर हमने पेरोक्साइड डाल दिया तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, रिवर्स हो गया था. कि अब क्वेश्चन क्या राइज होता है बेटा यहाँ पर कि व्हाई एंटी मार्कोनिक कॉज रूल इज फॉलोड बाय HBr ओनली, व्हाई नॉट बाय HF, HCl, HI. दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड इसका उपयोग क्यों नहीं करते? बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा. अभी मैंने कहा था कि आप एंटी मार्कोनिक कॉज रूल का मैकेनिज्म देखना, वहां पर आपको पता चल जाएगा, तो मैकेनिज्म जरूर देखना आपको, तभी आपको अच्छी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी. इन द मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था बेटा कि सेकंड स्टेप आता है वहां पर प्रोपेगेशन स्टेप. प्रोपेगेशन स्टेप के 2 सब स्टेप्स हैं. उन दोनों सब स्टेप्स में बेटा बोथ ऑफ द सब स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक फॉर HBr. HBr के लिए दोनों के दोनों सब स्टेप क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है. बट HF, HCl, HF और HCl के लिए जो फर्स्ट सब स्टेप है, फर्स्ट सब स्टेप सेकंड प्रोपेगेशन स्टेप का, ये एक्सो होता है इन दोनों के लिए, एक्सोथर्मिक. HBr के लिए भी फर्स्ट सब स्टेप है जो, HBr के लिए तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सब स्टेप्स हैं जो सब स्टेप्स बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर.
HF और HCl के लिए फर्स्ट सब स्टेप एक्सोथर्मिक है, बट सेकेंड जो सब स्टेप है, सेकेंड सब स्टेप इज एंडोथर्मिक। सेकेंड सब स्टेप एंडोथर्मिक मीन अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल हेयर, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। बट HBr में देखो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ सब स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली, अपने आप ही चलेगी, नो नीड टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्स। बट इन केस ऑफ HI, अब आप कहो कि HI में तो बॉन्ड और भी वीक हो गया, नो डाउट, बट पॉइंट क्या बेटा यहाँ पर, HI के केस में जो फर्स्ट सब स्टेप है दिस इज एंडोथर्मिक, एंड सेकेंड जो सब स्टेप है इसका बेटा HI के केस में दिस इज एक्सोथर्मिक। मीन इन बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स में कोई एक सब स्टेप एंडोथर्मिक बन रहा है, HF और HCl में सेकेंड सब स्टेप, और HI के केस में फर्स्ट सब स्टेप भी एंडोथर्मिक हो गया बेटा, अपने आप रिएक्शन नहीं हो रही है, इन दोनों में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पर, सो रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। बट यहाँ पर इन केस ऑफ HBr both substeps are exothermic, so reaction is favorable and takes place according to this rule, इस rule के according reaction हो जाती है यहाँ पर। ओके, तो this is all about method of preparation of haloalkanes from alkenes and alkynes by addition of hydrogen halides. Thanks a lot.